गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जो आप लोगों का मैंने वेक्टर का टेस्ट लिया था, तो उस टेस्ट में जो भी क्वेश्चंस थे, बहुत लोगों का वो क्वेश्चंस मिस्टेक्स भी हुए, ठीक है। एंड मिस्टेक्स हुए और बहुत लोगों ने सोल्यूशन नहीं भी किया ठीक से। तो मैं उस क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन को डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। एंड यू चेक इट आउट, और इसके बावजूद भी अगर आपको किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स लगे, सो यू कैन कॉन्टैक्ट अस. So keep in touch with us and just see the solutions of the questions asked in the test. So पहला जो प्रॉब्लम था, that problem was very simple problem. प्रॉब्लम था कि mod of a cross b, mod of a cross b, right, is equal to a vector dot product b vector, right? This was the question. Or we have to find the angle between a and b. Very simple. We know that a cross b is ab sin theta, right? And a dot b is ab cos theta, right? So we can write that tan theta will be 1, so theta will be equal to 45 degree. Quite simple question, and maximum of most of you have solved it correctly. Let's see the second problem. Okay, the second problem was a vector is not changed if, suppose this is the vector. Okay, suppose this is vector a. Now what is the first option? The first option says it is rotated through an arbitrary angle. Now अगर इस वेक्टर को, if we rotate this vector in any angle, suppose we rotate this vector in this angle, so the direction of the vector is changed, so vector will change because vector has magnitude and direction. vector के पास दोनों होता है, magnitude और direction दोनों होता है. अब वेक्टर को किसी पर्टिकुलर एंगल पर घुमा देंगे, तो किसी भी एंगल पर उसको घुमा देने से उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, सो वेक्टर चेंज हो जाएगा. सो फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट करेक्ट. इट इज मल्टीप्लाइड बाय एन आर्बिट्ररी स्केलर. अब एक वेक्टर है, उसको हम किसी आर्बिट्ररी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं. सपोज वी मल्टीप्लाई विद 2, सो द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर विल गेट डबल, सो अगेन द वेक्टर इज चेंज्ड. So this option is also not correct. Now what is the third option? The third option is it is cross multiplied by unit vector. Now if I cross multiply a vector with a unit vector, so we will get a vector which is perpendicular to this vector. We will get a vector which is perpendicular to this vector. So again the direction is changed. So this will also change the vector. But see, the fourth option is it is slide parallel to itself. Means this is a vector, and if you slide this vector parallel to itself, so the magnitude of the vector also remains same, and since it is sliding parallel to itself, so direction also remains same. So option D is correct, that when it is slide parallel to itself, means when a vector is slide parallel to itself, then the vector remains unchanged, because since it is slide parallel, direction remains unchanged and magnitude is same. Okay. The third question says which of the sets given below may represent magnitude of three vectors adding to 0. Now 2, 4, 8, this is the first option. We cannot add these two vectors and we get 0. Possible nahi hai. See the second option. Second option is 4, 8, 16. If we add these three vectors, we cannot get 0. Third option is 1, 2, 1. Yes, this is possible. How? Suppose one vector having magnitude 1. एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, उसका डायरेक्शन इधर है. दूसरा ही वेक्टर है, मैग्नीट्यूड 1, उसका डायरेक्शन इधर है. और तीसरा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 2, उसका डायरेक्शन इधर है. तो इनको जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा ना. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. क्लियर? द क्वेश्चन सेज कि तीन कौन से ऐसे तीन इसमें जो पेयर है, लास्ट ऑप्शन भी आप देख लीजिए. लास्ट ऑप्शन इज 0.5, 1 एंड 2. वी कैन नॉट ऐड एनी टू वेक्टर्स. यहां पे कोई भी दो वेक्टर को ऐड करने से मैग्नीट्यूड सेम नहीं आएगा. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, दो वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है. जैसे 1 न्यूटन का फोर्स है या 1 न्यूटन का फोर्स है, इधर 2 न्यूटन का फोर्स हो गया, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना. तो ये इसी में 0 आने का चांस है, बाकी में 0 आने का चांस नहीं है. ओके. Okay. Now question number 4 is a vector A points vertically upward and B points towards north. Now यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को. मैंने पहले भी कहा है कि नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट में कंफ्यूजन होता है. देखिए लेट अस सी. अब यहाँ पे अगर कोई इसको नॉर्थ बोल रहा है, इसको साउथ बोल रहा है, इसको ईस्ट बोल रहा है, इसको वेस्ट, और फिर बोल रहा है कि वेक्टर है वर्टिकली अपवर्ड, तो उसको कंफ्यूजन होगा कि अरे भैया एक तो नॉर्थ है, वर्टिकली अपवर्ड बोल रहे हैं, दोनों सेम है. नहीं, दोनों सेम नहीं है. ठीक है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा आप यहाँ समझ सकते हैं
लेट अस सी कि ये जो वेक्टर है, जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, इधर ईस्ट वेस्ट है, ठीक है। और वर्टिकली अपवर्ड का मतलब ये हो गया, ये है वर्टिकली अपवर्ड, राइट। ये हो गया आपका वर्टिकली अपवर्ड, और ये जो इसका कैप है दैट इज टुवर्ड्स नॉर्थ। तो अब हम लोगों को क्या करना है, ये वेक्टर जो है वर्टिकली अपवर्ड है और बी नॉर्थ की तरफ है, ए क्रॉस बी करना है, राइट। तो ए क्रॉस बी करेंगे मतलब ए की तरफ फिंगर रखेंगे, ये चारों फिंगर, और इसको मोड़ेंगे और इसको देखेंगे, इसको थंब को, इसको जैसे मोड़ रहे हैं तो इधर आ रहा है, इधर हमारा क्या होता है, वेस्ट होता है। सो आंसर विल बी अलोंग वेस्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। सो आंसर विल बी अलोंग वेस्ट। समझ में आया बात? वर्टिकली अपवर्ड का मतलब क्या हो गया, समझ में आया? मतलब ये ऐसे होगा वर्टिकली अपवर्ड, राइट। फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। वर्टिकली अपवर्ड का मतलब हो गया ये चीज, दिस इज वर्टिकली अपवर्ड। सो अगर ये वर्टिकली अपवर्ड है तो हम ऐसे रखें, और इसको अगर मोड़ेंगे नॉर्थ की तरफ तो जो हमारा थंब है वो वेस्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है। सो दिस इज अलोंग वेस्ट, बिकॉज़ यू नो द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। ये आप लोग जानते हैं, ये चीज को दिमाग में रखना है। इसका डायरेक्शन हम लोग को राइट हैंड थंब रूल से मिलता है, राइट। तो थंब रूल में क्या करना पड़ता है, ए क्रॉस बी, तो ए वर्टिकली अपवर्ड है, क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। ओके, नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 5। यहां पे क्या है, दो फोर्सेस दिया हुआ है, F1 वेक्टर दैट इज इक्वल टू 5i प्लस 10j minus 20k, right, and second vector was F2 that is equal to 10i minus 5j minus 15k. Now we have to find the angle between F1 and F2. So we can use the concept of dot product, F1 vector dot F2 vector divided by mod of F1 vector and F2 vector. We will get cos theta and from that we can find the angle, right. So but dot product करना है, dot product में क्या होता है, सेम यूनिट वेक्टर को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 50, राइट, ये हो जाएगा -50 और ये हो जाएगा +300, राइट, क्लियर है। एंड यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो मैग्नीट्यूड F1 का क्या आ जाएगा, 5 स्क्वायर दैट इज 25, 10 स्क्वायर दैट इज 100 and 20 square that is 400, right, into फिर इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, 10 square that is 100, 5 square that is 25 and this is 225. So we will solve it, we will get the cos theta, इससे cos theta मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, लगभग ऊपर में 300 आ गया, नीचे कितना हो गया 525, राइट, 525 और यहाँ पे हो जाएगा 325 into 25 that is 350, तो 350 आ जाएगा, दिस इज cos थीटा। से अप्रोक्सीमेटली जब इसका वैल्यू निकालेंगे तो इट विल कम अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है, √3/2 के आसपास आएगा, दैट इज 30 डिग्री। ओके, very simple. There is a unit vector that is, suppose A is a unit vector, it is given 0.8i plus bj, right, plus 0.4k. Now we have to find the value of b. Now what is the logic, since it is a unit vector, so the magnitude of this should be 1. So magnitude means square of the coefficient 0.8 square plus b square plus 0.4 square is equal to 1. You can take the, you can square both sides, so it will be 0.64 plus b square plus 0.16 equals to 1. So b square equal to 1 minus 0.80, so it will be b square equal to 0.2, so b is equal to root under of 0.2. This will be the answer. Question number 7, there is the answer is itself in the question, बस definition को समझना था। एक चीज बताते हैं, जैसे मान लीजिए ये a है हमारा, ठीक है, ये a वेक्टर है और ये मान लीजिए हम लोग का b वेक्टर है and this is making an angle theta, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं a का इधर क्या कंपोनेंट होगा, a cos theta. So this component a cos theta is called projection of a on b. This is called projection, a cos theta is called projection of a vector on b vector, because this vector that is a cos theta
is directed along vector b. अगर हम इस b का कंपोनेंट निकालते हैं तो एक कंपोनेंट होता b cos थीटा और एक परपेंडिकुलर होता b sin थीटा। जो b cos थीटा है वो along a होता, उसको बोलते हैं a b cos थीटा is the projection of b on it। ठीक है, यहाँ पे बोला है the vector projection of vector this one vector on y axis। सो हम लोग को क्या करना है, एक वेक्टर हमारा है a, ठीक है, a वेक्टर यहाँ पे दे दिया 3i plus 4k, राइट, एंड अनदर इज सपोज b वेक्टर जो कि डायरेक्टेड अलोंग किधर है, y, बिकॉज़ y के साथ प्रोजेक्शन निकालना है। सो y इज व्हाट, y इज, यू कैन राइट j वेक्टर। सो इफ यू टेक डॉट प्रोडक्ट a वेक्टर डॉट b वेक्टर, it will be ab cos theta, right? So what we have to find, projection of this vector on this, means we have to find a cos theta। So a cos theta क्या हो जाएगा, a dot b divided by b। अगर हम लोग को बोला जाता प्रोजेक्शन ऑफ b निकालने के लिए तो हमारा हो जाता a dot b divided by a, just remember simple। So a dot b will be this into this, it will be 0 because dot product में हम लोग क्या करते हैं, सेम वाला कोई मल्टीप्लाई हो सकता है। So it will be 0। So if it will be 0, then the answer will be 0। Finally answer will be 0। So a cos theta will be 0, right? A cos theta will be 0। 8, okay? So question number 8 is the resultant of p and q is perpendicular to p, then what is the angle between p and q? Means suppose this is p vector, right, and this is q vector। जब भी याद रखना, जब भी क्वेश्चन में बोलेगा कि रिजल्टेंट किसी वेक्टर पर परपेंडिकुलर है, मतलब दो वेक्टर है और दोनों वेक्टर में से रिजल्टेंट किसी एक वेक्टर पर परपेंडिकुलर है, तो हमेशा याद रखना कि दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री से ज्यादा होगा। ठीक है, तभी रिजल्टेंट किसी एक वेक्टर पर परपेंडिकुलर हो पाएगा। दिस इज द रिजल्टेंट, ऑलवेज रिमेंबर व्हेन वी the question says that there are two vector and the resultant is perpendicular to any one of the vector, then remember that the two vectors will have angle between them greater than 90 degree। तो ये मान लेते हैं ये 90 डिग्री है, ठीक है, तो हम लोग को निकालना है ये एंगल कितना होगा, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा। सो जस्ट वी कैन राइट ये एंगल सपोज अल्फा है, तो tan अल्फा का फार्मूला क्या लिखेंगे, tan अल्फा का फार्मूला आ जाएगा q cos थीटा डिवाइडेड बाय p प्लस q sin थीटा डिवाइडेड बाय p प्लस q cos थीटा। ये आप लोग जानते हैं, तो क्या जानते हैं कि कभी भी किसी भी रिजल्टेंट का जब किसी वेक्टर के साथ एंगल निकालते हैं तो जो वेक्टर के साथ एंगल निकालते हैं उसको अकेला छोड़ देते हैं इस फार्मूला में। सो नाउ द एंगल इज tan 90। सो tan 90 नॉट डिफाइंड, वी कैन राइट 1/0। tan 90 नॉट डिफाइंड होता है, उसको 1/0 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा q sin थीटा डिवाइडेड बाय p प्लस q cos थीटा, राइट। सो नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई इट, सो cos थीटा विल बी इक्वल टू माइनस p/q। So minus p by q or theta will be equal to cos inverse minus p by q, right? This is the answer। Okay, let us see question number 9 now। Very simple question। Mod of a plus b is equal to mod a plus mod b। इसमें बहुत लोग कैलकुलेशन करते हैं, मैं सिंपल mod a plus mod b। Okay, I am just try to tell you mod of a plus b equal to mod a plus mod b तभी पॉसिबल होगा जब a वेक्टर का डायरेक्शन और b वेक्टर का डायरेक्शन एक ही तरफ रहेगा, तभी हम लोग लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये 2 न्यूटन का फोर्स है, ये 3 न्यूटन का फोर्स है, दोनों का सम क्या हो जाएगा 5 न्यूटन का फोर्स। दैट मींस मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर दैट इज 2 न्यूटन, magnitude of b vector that is 3 newton is equal to magnitude of the sum of the vector that is 5 newton। तभी पॉसिबल है when the two vectors are directed along same direction, so that is the angle will be equal to 0 degree। okay, the angle will be equal to 0 degree, simple। okay, for what value of x this and this are coplanar। now this is very typical question। a vector दिया हुआ है that is I minus 2j plus 3k, right? This is one vector। another vector is b that is xj plus 3k, and vector c is 7i plus 3j minus 11k। there are 3 vectors। okay, now we have to find the value of x such that these 3 vectors are coplanar। now coplanar means
lying lie on सेम प्लेन, ठीक है, सेम प्लेन मतलब एक ही प्लेन में लाई कर रहा है, एक ही प्लेन में है वो, ठीक है, lying on same plane, ओके, so lying on same plane that is कोप्लानर हो गया। अब इसका मतलब क्या है, अगर हम इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, कोई भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो कोई भी दो वेक्टर, इन तीनों में से कोई भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो उससे एक वेक्टर मिलेगा, और वो जो वेक्टर आएगा वो इस प्लेन पर परपेंडिकुलर होगा। सपोज आई एम टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दिस टू वेक्टर्स, सपोज वी आर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस C, राइट? So A cross C, how we take the cross product? I j k. A is 1 2 minus 2 3 and 7 3 minus 11, right? So we just take the cross product. So cross product लेंगे इसका I, क्या होगा I का, this into this that is 2 minus this into this that is 22 minus this into this that is 9, right? Plus j. So this into this 21 minus this into this plus 11 plus k. So k will be this into this that is 3 plus 14. So the cross product is कितना 9 10 11 12 3 13 I plus 2 32j plus 17k. Okay, this is the A cross C. Now A cross C is also a vector. Suppose this vector is D. Now this D vector will be perpendicular to the plane. जिस प्लेन में ये तीनों वेक्टर है, उस तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में है, तो A क्रॉस C से जो वेक्टर मिलेगा वो इस पर भी परपेंडिकुलर होगा, इस पर भी परपेंडिकुलर होगा, तो इस पर भी परपेंडिकुलर होना चाहिए क्योंकि तीनों एक ही प्लेन में है। और अगर परपेंडिकुलर है तो अगर हम D वेक्टर को B वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करें तो 0 आ जाएगा। तो डॉट प्रोडक्ट का तो 13 into I है ही नहीं, तो 0 13 into x 13x हो जाएगा, j into j and 30 I तो है नहीं, सॉरी 13 into है नहीं I 32j 32x हो जाएगा, राइट? इट विल बी 32x and 17 into this that is 51, तो it will be equal to 0. So x will be minus 51 by 32. ऑप्शन होना चाहिए, yes, that is the correct answer. करेक्ट, समझ में आया?